second exception, that is an exception to the further law of dominance. अभी हमने किया incomplete dominance, ठीक है. incomplete dominance में एक फीचर आया था कि जो dominating जीन है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करती, जो मेंडल ने बोला, that was the concept. But now in this second case, that is of codominance. Now the second case, second exception is that of codominance. In this, what is happening? As the word is saying co means together, दो इकट्ठे, है ना. जैसे आपने को ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर. तो दो चीजें इकट्ठी डोमिनेट कर रही हैं. दो चीजें इकट्ठी कैसे डोमिनेट करती हैं? मेंडल के अकॉर्डिंगली उन्होंने तो बोला था कि होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर होगा या हेट्रोजाइगस पेयर होगा या होमोजाइगस रिसेसिव पेयर होगा. और यहाँ पे ऑब्वियस है कि एक डोमिनेटिंग है या दोनों ही डोमिनेटिंग है, उन्होंने एक्सप्रेस करना ही है और सेम ही एक्सप्रेशन दे रही है. मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये था ना, यही वाली कंडीशंस प्रोवाइड करी थी. और जब दो जीन्स डोमिनेटिंग प्रेजेंट थी तो वो सेम एक्सप्रेशन देती थी, दोनों वॉयलेट वॉयलेट, एंड हेंस वॉयलेट इज द फीमेल. बट को डोमिनेंस में उन्होंने एक अलग फीचर लिया जिसमें अलील्स प्रेजेंट है. पहली चीज, दो फैक्टर्स या दो जीन नहीं है, ठीक है. अलील्स में अगर दो अलग अलग डोमिनेटिंग जीन्स प्रेजेंट हैं तो दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन आएगा. यानी पहली भी एक्सप्रेस करेगी, दूसरी भी एक्सप्रेस करेगी और एक नवा ट्रेट आएगा, ना पहली का ना दूसरी का, एक नवा ट्रेट आएगा. हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल, हियर वी टेक एन एग्जाम्पल दैट ऑफ द blood groups. We take an example of blood groups in humans. Fine. So for the blood groups in humans, we have three alleles that which are responsible for giving this phenotypes. That is, we have IA as three alleles, IB and I naught. I naught can also be written with small I. Now here IA is a dominating gene, okay. IB is again dominating, whereas I naught or this I is recessive, है ना. जब मेंडल की बात होती थी तो उन्होंने बोला एक डोमिनेटिंग है एक रिसेसिव है, खत्म. जो सैप करेक्टर्स हमने लिखे थे, हमने एक फीचर लिखा, एक डोमिनेटिंग का ट्रेट बनाया, एक रिसेसिव का बनाया, एंड दैट्स इट. What after that? Here are in case of the alleles, if two of the dominating genes are present and if they are present together, then there will be an equal expression from both of them and providing a new trait. कैसे? अब अगर मैं इनके जीन्स के साथ इनके ट्रेट्स एनलिस्ट करती हूँ, what is the possibility for getting the A blood group? अगर हम A blood group की बात करते हैं तो what is the possible genotypes? ये हमने पढ़ा, मेंडल से ही पढ़ा कि जीनोटाइप एक्सप्रेशन देता है पेयर में, पहली चीज. दूसरी चीज उन्होंने बोला कि अगर डोमिनेटिंग प्रेजेंट है एक पेयर में तो वो अपना एक्सप्रेशन देगा, या डोमिनेटिंग को एक्सप्रेस होने के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन चाहिए, या डोमिनेटिंग को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन चाहिए. तो हम ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए अलील को उठाते हैं, उसको फर्स्ट हमने दिया होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर, है ना, दोनों डोमिनेटिंग सेम आई ए. Second, this is also possible when a dominating gene is accompanied by, this is a dominating gene, it is accompanied by a recessive gene. That is also possible. And this also expresses to form A blood group. Similarly, the B blood group. B blood group, which was also a character of human beings, this will be again expressed in the same manner, either in the form of homozygous dominant pair or it requires a heterozygous pair for its expression. Clear? Now coming to the next is AB blood group. अब ये अलग आ गया, ना ये A है ना ये B है, AB blood group है. आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी हुआ है सर्कुलेशन में, what type of the antibodies and antigens are produced and how they are different, है ना, we have studied that. So here it is an AB blood group. How is it going to express? This will be expressed when both the dominating but different genes are going to make a pair. ठीक है. So IA, one dominating, IB, another dominating, are together present. The two are together present and they are expressing their own features. A भी आ रहा है और B भी आ रहा है, so इसलिए वो ब्लड ग्रुप बना AB, B blood group. ठीक है. So this is the feature of codominance. This is called as codominance. यहाँ पे शो होती है codominance.
बाकी तो सेम ही चल रहा है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, पर यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप के साथ कोडोमिनेंस शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओ ब्लड ग्रुप, this is O blood group. It will be a recessive feature, so it will be expressed by I naught pair, that is दोनों recessive, homozygous recessive जैसे मेंडल ने बोला वैसा ही homozygous recessive pair। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या स्मॉल आई के साथ भी लिख सकते हैं, that's up to you, right? So this is a recessive feature, clear? Now here is one more concept, that is of having more than a pair of these genes. This is also expressing in the number of the count of these pairs for providing one character, that is blood group, है ना? So this is also termed as, this concept of having number of alleles responsible for the character, this is also termed as multiple allelism. That condition is also termed as multiple allelism. When there are number of alleles and the pairs are also, number of pairs are possible for providing the character, and that character is of a blood group. Each human being is going to have either of these, है ना? डबल भी नहीं हो सकते, all of these भी नहीं हो सकते, either of these, right? But the alleles are present as such, and they will be together. How they are being expressed, in what pair they will be giving their expression phenotypically, okay? So this is the concept of the codominance and multiple allelism. Otherwise, from this topic, basically, you can get to have what is codominance and how it is expressing. Give an example. So ऐसा question आपको यहाँ आ सकता है. But usually you get to have the question from here, from this topic, as in the form of the crosses. ठीक है, क्रॉस बनने को आते हैं. अब क्रॉस किस तरह से आएंगे? या पेरेंट्स गिवन है, ऑफस्प्रिंग पूछा जाएगा, या ऑफस्प्रिंग गिवन है, पेरेंट्स पूछे जाएंगे. ठीक है, कैसे? लेट्स से हमें पूछते हैं कि we are given simple cross, that is a mother having A blood group is crossed with or marries with a man, that is a female having A blood group marries with a man having B blood group, and what is the possibility of their child having the O blood group, right? And if it is having the possibility, then what is the genotype of those parents? कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है? अगर है तो कितनी पॉसिबिलिटी है? ठीक है, उसने पूछा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी मींस ऑलवेज यू हैव टू गिव हियर इन परसेंटेज. ठीक है, अपने परसेंटेजेस में देना है यहाँ पे आंसर. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पेरेंट्स, ऑफ these parents to have a child with O blood group? And second question, if so, that is if there is any possibility, then what is the genotype responsible for the parents? वो कौन सा जीनोटाइप है जो पेरेंट्स को आगे फर्दर प्रोवाइड करता है ऑफस्प्रिंग्स में ओ ब्लड ग्रुप आने के लिए. ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक क्रॉस डेवलप करना है. उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. सो वी शैल कंटिन्यू विद एन एग्जांपल फ्रॉम दिस, जो अभी मैंने बोला, दैट इज अ मदर इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप, father is having B blood group, and what is the possibility of the child having O blood group? So this is first example, first question which I am taking. Now if I say that I need to find out that O blood group is present in their child or not, है ना? अगर O blood group मुझे चाहिए, सीधी सी बात है, O तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में से उसको होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ऑफ ये जो जीन्स फैक्टर्स हैं वो मिलेंगी. मतलब ये है कि O की पॉसिबिलिटी के लिए आई नॉट इधर भी होना चाहिए, आई नॉट इधर भी होना चाहिए, है ना? तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा और नीचे आएगा आई नॉट में O बनाएगा. ये सीधी बात है ना, ये समझ आ गया. O ब्लड ग्रुप चाहिए तो आई नॉट दोनों पेरेंट्स में होना जरूरी है. ठीक है, अब यहाँ पे जब हो रहा है तो अब दूसरी बात, आई नॉट एक तो फिक्स हो गया. बी ब्लड ग्रुप बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, वी विल बी सिलेक्टिंग अनदर जीन विच इज आई बी, है ना? तभी एक्सप्रेशन आएगा. ना आई ए ले सकते हो, ना आई नॉट ले सकते हो, सिर्फ आई बी लेंगे. सिमिलरली हेयर दिस इज आई ए विच इज पॉसिबल, है ना? यहाँ पे भी आई ए लेना पड़ेगा क्योंकि ए एक्सप्रेशन फिनोटाइप का देना है तो जीनोटाइप में ये रहेगा. अब जब हमारे पास पेरेंट्स में ओ की पॉसिबिलिटी शो हो रही है, आपने पहला कंक्लूजन देना है ओ ब्लड ग्रुप in the offsprings is only possible if the two parents are heterozygous. ये कंडीशन क्लियर कर दी हमने कि वो हेट्रोजाइगस होने जरूरी है. अगर इनमें से कोई एक भी होमोजाइगस होता है वो नहीं आएगा, दोनों होते हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना?
ओ नहीं आएगा। ओ तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब इसके बाद हम बाकी पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, मतलब कितना परसेंट चांसेस है कि ओ आएगा। अब हमने क्या किया, इसके हमने सारे पेयर्स बना लेने, वो तो आना ही आना है। अब बाकी पेयर्स भी बनाओ। दिस इज आई ए आई बी इज पॉसिबल। फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल क्या होगा, आई ए एंड आई बी, दिस इज आई ए आई बी। सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज आई ए आई ओ। थर्ड possibility is of IB, IO, and fourth possibility is of I naught, I naught. ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब जब ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई, अब एक्सप्रेशंस क्या है, फिनोटाइप क्या आया, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए, दिस इज फिनोटाइप इज ए, here the expression is B, here only it is O. So our question's answer will be that O blood group in a child is only possible when both the parents are heterozygous, right? And what are the chances if they are heterozygous? It is only 1 out of 4 into 100. 100 give here, that is to give the possible percentage. So this is only 25% chances are there. Still, if both the parents are heterozygous, but still there are 25% chances for this organism to get the feature of O blood group. Only 25% chances will be there. ठीक है, एंड व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, दैट इज व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, है ना, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, सो इट इज आई ए आई नॉट फॉर मदर और फादर, जो भी, ये स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, जैसे मदर का बोला था ना ए, तो फिर आप लिख भी सकते हो फॉर मदर इट इज आई ए आई नॉट एंड फॉर फादर इट इज आई बी आई नॉट। अदरवाइज अगर आपको पूछते हैं, सिंपली बोलते हैं कि द टू पेरेंट्स वर हैविंग ए एंड बी ब्लड ग्रुप, तो वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, सो नीड नॉट टू स्पेसिफाई दैट मदर इज हैविंग दिस और फादर इज हैविंग दिस। वहां पे जब स्पेसिफाई उन्होंने क्वेश्चन में नहीं किया तो आपने नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल वेयर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स यू आर गोइंग टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन द ऑफस्प्रिंग टू गेट दिस ओ ब्लड। ठीक है, इसी में ही मैंने आपको सेकंड वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन भी करवा दिया, जिसमें ऑफस्प्रिंग से आपने जीनोटाइप्स ढूंढने होते हैं पेरेंट्स। मैंने कहा था ना, एक तो पेरेंट्स का गिवन है, ऑफस्प्रिंग का ढूंढना है, दूसरा आपने ऑफस्प्रिंग से जीनोटाइप ढूंढने हैं पेरेंट्स के। जैसे यहाँ पे ढूंढे हमने, अगर ओ ब्लड ग्रुप चाहिए था तो हमने दोनों में आई नॉट पहले डाल दिया। ठीक है, अगर आपको बी ब्लड ग्रुप देते हैं, सपोज कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में बी ब्लड ग्रुप है और पेरेंट्स की दोनों की जीनोटाइप्स बताइए। अगर ऑफस्प्रिंग में बी ब्लड ग्रुप है, अगर ऑफस्प्रिंग बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो पेरेंट्स में दोनों में बी पॉजिटिव, बी आना कैसे है, दोनों में से एक एक जीन पहले तो आएगा, है ना, दोनों में से आएगा ना, तो क्या आएगा, सॉरी इधर एरो करेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स इसको बी के लिए जीन्स दे रहे हैं। अब बी पॉसिबल है दो तरीके से, तो आप दोनों पॉसिबिलिटीज लिख के बताओगे, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अब अगर तो एक पेरेंट कोई भी यहाँ पे आई नॉट वाला हो, ठीक है, और अगर कंडीशन भी दे दी सपोजिंग कि पेरेंट्स में कोई बी वाला नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स में कोई बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं है, फिर कैसे आएगा, बी ब्लड ग्रुप वाला है नहीं, ना ये बी वाला है ना ये बी वाला है, तो कैसे आएगा। यहाँ पे हमने इसको आई ए बना दिया, ये बन गया ए ब्लड ग्रुप वाला, दूसरी तरफ हमने ए बी ब्लड ग्रुप ले लिया, दोनों ही देखो बी वाले नहीं है ना पेरेंट्स, और पॉसिबिलिटी है कि ये और ये दोनों जुड़ जाए, फिर हमारा पर्पस सॉल्व हो गया और ये मिल गया इसको जीनोटाइप। ठीक है, तो दिस वे यू विल बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। दिस इज अ सेकंड एग्जांपल, सो एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन गेट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि क्या कंडीशंस दी हैं, अगर दो पॉसिबिलिटी बनती है तो दोनों बतानी है, एक बनती है तो एक बतानी है, दैट इज इट, राइट। So this kind of the questions of the process you are going to get, and so prepare well for your test. Today you are having the test, you will see more of these kind of the questions, so please practice beforehand to get these kind of questions easily on your hand.